Hi, friends. Welcome to the Aspire and Acquire podcast. I'm your host, Sandeep Suri. Join me for listening to some incredible stories about some of the best professionals from very diverse fields like combat flying, robotic surgery, dancing, tea farming, journalism, deep sea diving, and so on. These accomplished professionals are not just outstanding in their jobs, but also have unique stories to share with us. We have tried to make the show truly global by having these guests from different parts of the world. So without further ado, let's dive into the session. Financial inclusion, or the effort to provide affordable and accessible financial services to underserved and marginalized populations, remains a global challenge. While progress has been made in many countries, it still remains a daunting task. Income inequality can be both a cause and a consequence of financial exclusion, and addressing broader economic disparities is essential to improving financial inclusion. Efforts to address these challenges require a multi-stakeholder approach involving governments, financial institutions, technology providers, civil society organizations, and international bodies. Financial inclusion is not only a development imperative, but also a pathway to economic growth. There are companies that, despite all these odds, go against the tide and emerge as winners. One of such companies is Sugamya Finance, and in today's episode of Aspire and Acquire, we proudly invite Vikas Singh, one of the co-founders of this dynamic company, who has been tirelessly working on the objective of financial inclusion and helping the marginalized population to provide easy financial access. Talking about Sugamya, its current AUM, or in other words, asset under management, stands at $37 million. By the end of this fiscal year, its AUM is expected to touch $48 million. The company is built with a vision of boosting inclusive growth, reducing income inequality, and promoting women's empowerment. It is poised to witness huge growth in the years to come. The company offers three major modalities to help its customers grow their ventures: MSME loans, microloans, and consumer durable loans. It has empowered more than 60,000 households through its network in 40 districts across 9 states in India. It has a super impressive track record of 0% default rate. As a tech-savvy organization, Sugamya Finance is focused on creating a diverse range of tech operations under the Digital India Initiative, a flagship program of the Government of India promoting digitization in rural areas. So let's just dive into the show. Hi, Vikas. It is a pleasure to host you on Aspire and Acquire. Thank you, sir. Thank you. So, Vikas, let me start by asking you what really inspired Sugamya to start his journey on financial inclusion in India. तो ये आपकी शुरुआत हुई कैसे, जरा उसके बारे में बताएं। एक्चुअली सर, इस सेक्टर में मुझे लगभग 16 इयर्स हो गए और मैंने अपने करियर का जो स्टार्टिंग हमने 2006 से किया था। और एक्चुअल में माइक्रो फाइनेंस इंडिया में 1992 के आसपास से आया। तो और मैं 2006 में जब माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में एंटर किया और हमने 6 मंथ का आसाम मॉडल से ट्रेनिंग देने के बाद हमने कैस्टमोर में आसाम मॉडल की ब्रांचेस ओपन किए। और हमने फिर देखा कि जो रूरल इंडिया है, रूरल विलेज में लोगों को नीड होती है पैसे की, तो अभी बैंकिंग उतनी सभी जगह नहीं थी। और लोगों को रिक्वायरमेंट होता था, तो फिर बैंक के पास जाने पर उनको बैंकिंग के लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो प्रोवाइड नहीं कर पाते थे। तो उनको और उनकी कोई सिक्योरिटी और कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं था उनके पास, तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम हुआ करते थे। तो वहां से हमने देखा कि लोगों को नीड है पैसे की, उनको अपने बिजनेस को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। और मुझे 16 साल जो अपनी जर्नी में मैंने देखा एक्सिस की सभी जो इंडस्ट्री में गवर्नमेंट जो डिजिटल इंडिया में बात करती है, एक्चुअल में डिजिटल इंडिया सभी के अकाउंट गवर्नमेंट के थ्रू ओपन हो चुके हैं, लेकिन एक्चुअल में लोग डिजिटली कोई पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं। वो सेविंग के नाम पर उनको डर होता है कि बैंकिंग चार्जेस, बैंक कुछ चार्जेस कट लेते हैं, कुछ उनकी ये होती है। तो ये सबको देखते हुए कि अभी बहुत से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर अभी फाइनेंशियल सर्विस नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है, उनको Interesting. स्ट्रीमलाइन यानी तो आपके हिसाब से
उनको नॉलेज नहीं है, उनको मालूम नहीं है कि इसमें चार्जेस नहीं है, और ये चीज़ उनको हाँ, पूरी सर अगर पूरी। मैं बात करूं इंडिया की, हाँ। तो 1/4 अभी ऐसे इंडिया में पॉपुलेशन है, 1/4 पॉपुलेशन ऐसी है जो भी बिल्कुल इलिटरेट है, जिनको अभी उतनी फाइनेंशियल लिटरेसी के नाम पर उनको भी अवेयरनेस उतना नहीं है। तो इंटरेस्टिंग। कस्टमर को अकाउंट ओपन है, कस्टमर क्या सेविंग, आज की डेट में आप देखेंगे कि लगभग 99% लोगों के पास अकाउंट है, लेकिन लोग सेविंग के नाम पर वो कुछ भी नहीं, उनके पास सेविंग नहीं करते। उनको डर होता है कि बैंक कुछ चार्जेस उनको डिडक्ट कर लेती है, कुछ कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो गया, कुछ उनसे पैसे अकाउंट से कोई निकाल लिया। इस डर की वजह से वो सेविंग नहीं करते हैं। वो चाहते भी हैं तो फिर केवल इसी डर से कि उनके अकाउंट से कुछ पैसे, कभी ₹50 कभी ₹20 चार्जेस कट जा रहे हैं, या कोई फाइनेंशियल फ्रॉड ना हो जाए। इस वजह से वो बैंकिंग में वो लोग सेविंग नहीं कर रहे हैं। तो ये डर उनका मेजर आप हटाते कैसे हैं? ये जो उनके मन में बात आती है कि चार्जेस हो जाएँगे, कुछ फ्रॉड हो जाएगा, तो दिस मस्ट बी आल्सो पार्ट ऑफ योर तो जर्नी, इसके लिए राइट? सर क्या होता है कि हम लोग का जो मॉडल है, हम लोग की ब्रांचेस होती हैं, लोकल लेवल पर हम लोग ब्रांच जो भी जिस एरिया में हम लोग ब्रांचेस खोलते हैं, उसके हम लोग 30 किलोमीटर के रेडियस में हम वर्क करते हैं। 30 से हुँ, 40 किलोमीटर का रेडियस होता है जहाँ पे हमारे फील्ड स्टाफ जाती है, उस रूरल एरिया में विजिट करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी फाइनेंशियल नीड को जानते हैं, फिर वो अवेयरनेस हम उनको वहाँ पर ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारे फील्ड स्टाफ उनको जाकर के पहले उनसे पूछते हैं कि आपके अकाउंट है कि नहीं है, कस्टमर कहते हैं सर अकाउंट है, फिर पूछते हैं कि आप सेविंग करते हो कि नहीं करते हो। हुँ, जैसे मैं एक एग्जांपल अगर देखूं सर, कि मैं एक यूपी में राजा तालाब हमारी ब्रांच थी, हम हुँ, मैं वहाँ एक भैरवनाथ एरिया जहाँ पर मैं एक सेंटर विजिट करने गया था, हुँ, और वहाँ देखा कि एक गांव में कस्टमर सभी हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर रहे थे, और उनसे जब मैंने पूछा कि आपको इसके पहले आप कैश जमा करते थे, आपको कैश देना अच्छा होता कि आप अकाउंट के थ्रू करते हैं, अकाउंट के थ्रू आपको पहले सेविंग करना पड़ता है, अपने अकाउंट में पैसा रखना पड़ता है, तो प्रॉब्लम नहीं होता है। तो कस्टमर ने कहा सर इसके पहले हम क्या करते थे, कैश पैसा हम जमा करते थे, लोगों से हम कैश लिया करते थे, और हमें डर रहता था कि हम अकाउंट में पैसा रखेंगे तो मेरा पैसा बैंक कुछ चार्जेस काट लेगा, या हुँ, हमारे फ्रॉड हो जाएंगे। ये चीजें थी। दूसरी चीजें थी कि हम अकाउंट में पैसा इसलिए नहीं रखते थे कि हमें सब जगह से कैश मिलता है, तो हम पैसा जमा करने जाएंगे तो उसमें हमें चार्जेस डिडक्ट होंगे, चार्जेस लगेंगे, या फिर गाँव से बहुत दूर बैंक है। तो ये सब प्रॉब्लम आते थे जिसकी वज़ह से नहीं होता था। लेकिन आपके एम्प्लॉयी हमें आए, हमें बताए, उन्होंने हमें बेनिफिट्स बताया कि अगर हम बैंक में अपने पैसे डिपॉज़िट करते हैं, तो उस पर बैंक हमें इंटरेस्ट देती है। अगर हम 4 क्वार्टर की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पर, हुँ, तो उस चार्जेस क्वार्टरली जो क्लोजिंग के समय हम जो भी बैलेंस रखते हैं उसमें बैंक हमें 10, 20, ₹50 जो बैलेंस है उसके हिसाब पर हमें वो चार्जेस देती है, इंटरेस्ट देती है। दूसरा बेनिफिट्स होता है कि कस्टमर अपने अकाउंट थ्रू पेमेंट करते हैं, उसकी स्लिप मिलती है जो एक प्रूफ होता है, जो कि कहीं से हुँ, फ्रॉड नहीं होगा। करेक्ट। थर्ड ऑप्शन होता है कि हम बड़े टिकट साइज़ की लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आज अगर इंडिया की हम बात करिए तो रूरल एरिया में सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि कस्टमर को बड़े लोन लेना होता है। जैसे आज की डेट में अगर हम एक अच्छे भैंस भी लेने जाएँ तो लगभग 80, 90, 1 लाख के आस-पास मिलता है। लेकिन जो इनको लोन मिलता है वो 40,000, 50,000, ₹60,000 तक का ही लोन मिलता है। जिससे कि उनको मजबूरी में फिर दूसरे जगह से लोन, या फिर उनको अपना उसको फुलफिल करने के लिए अदर जगह से उनको लोन लेना पड़ता है। तो उनको एक कंपनी नहीं 2-2 कंपनी से फिर लोन लेने पड़ जाते हैं। राइट, वो इस वजह से कि उनको बैंकिंग हिस्ट्री उनकी नहीं होती, उनकी कोई बैंक स्टेटमेंट नहीं होता है। तो या, कस्टमर ने कहा कि सर ये सब बेनिफिट्स हमें बताया गया, और उसका हमने एक एग्जांपल के रूप में मुझे बेनिफिट ऐसे मिला कि मुझे मेरे लड़के को एक बाइक लेना था, और हुँ, उसने बैंक में अप्लाई किया तो एक्चुअली वो भी पढ़ रहा था, उसका कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन नहीं थे, उनके अकाउंट से कोई ट्रांजेक्शन नहीं होते, तो बैंक ने फाइनेंस नहीं किया। लेकिन जब मैं अपना बैंक स्टेटमेंट दिया और अपने नाम से मैंने फाइनेंस कराया तो बैंक मुझे इजीली फाइनेंस कर दिया। तो वही मैं बहुत इंस्पायर हुई, और मैं उसी दिन से ये कर लिया कि नहीं ये बहुत अच्छा है, और हम अपना बैंकिंग अपने अकाउंट में जिससे पैसा मंगाना होगा मैं कहेंगे मेरे अकाउंट में आप सीधे ट्रांसफर करिए। हम अपने अकाउंट के थ्रू अकाउंट में हम कंपनी को पेमेंट करेंगे, ईएमआई पे करेंगे। तो ये एक बहुत ही उससे उस गाँव के लोग बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने बहुत अच्छा फीडबैक दिया। हुँ, हाँ, तो ये इससे ये हुआ सर कि मैंने कई ऐसे एग्ज़ाम्पल देखे, जहाँ पर कस्टमर को ये बेनिफिट लगता है कि हमें बड़े टिकट साइज़ के लोन ईज़िली मिल सकते हैं। हाँ ये जी, नहीं कि मैं सुगम्या या इसके अलावा किसी भी हम बैंक से या कहीं से भी अगर हमारी बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन होती है, तो हमें बड़े टिकट साइज़ के लोन मिल सकते हैं। दूसरा बेनिफिट हुआ कस्टमर सेविंग करना सीख गई। गवर्नमेंट ने जनधन के अंतर्गत सभी के अकाउंट ओपन कर दिए, हुँ, लेकिन कस्टमर बैलेंस नहीं मेंटेन कर पाते थे। आज की डेट में
बहुत से कस्टमर अब धीरे-धीरे लोग नंबर ये बढ़ रहे हैं, लोग अब सेविंग करना स्टार्ट कर दिए, अपने अकाउंट में पैसा रखना शुरू कर दिए। तो ये बहुत अच्छा ये इम्पैक्ट आ रहा है रूरल एरिया में। राइट। सो विकास, आई एम वेरी इम्प्रेस्ड विद द मॉडल। जो मैंने आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था, तो आई रियलाइज कि यू हैव 0% डिफॉल्ट रेट, विच इज़ या अनहर्ड ऑफ एनी फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी इन इंडिया। तो वो मॉडल थोड़ा समझाइए। वन ऑफ द थिंग्स यू टोल्ड अस इन द कॉन्वर्सेशन अभी 5 मिनट पहले, कि जब आप जाते हैं एक विलेज में या जहाँ आप अपनी ब्रांच खोलते हैं, उसके 30-40 किलोमीटर के जो रेडियस होता है, वहीं पे आप लोन देते हैं। तो जस्ट टेल अस लिटिल बिट अबाउट आपका ये पूरा मॉडल क्या है। आई नो इट्स अ फुली डिजिटल कंपनी। हाउ डू यू गो अबाउट डूइंग यस। दिस? या सर, इसके पीछे अगर मैं दो इसमें दो तरह से मैं बात करूँ, क्या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रोसेस उनकी पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, कि अगर आपने एक प्रोसेस अच्छा बनाया है और मार्केट में लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने प्रोडक्ट डिजाइन किया है, उनकी रिक्वायरमेंट जो है उसके हिसाब से उनकी प्रोडक्ट डिजाइन है। क्या होता है कि एक एग्जांपल मैं कहूँ कि लोन सब लेना चाहें, लेकिन कितनी ज़रूरत है, अगर हम कहें कि आपको 2 लाख लोन देना चाहेंगे, तो 2 लाख ले लेंगे, उनको 2 लाख के लिए मना नहीं करेंगे। जैसे क्या होता है कि एक छोटा बच्चा है, अगर उसके हम 1 टोकें तो 1 लेगा, अगर उसके सामने 4 रख दो तो 4 लेना चाहेगा। सेम ऐसे ही होता है कस्टमर का, कस्टमर की डिमांड, उनको ये नहीं होता कि वो इतना है, ये नहीं होती कि नहीं मुझे ज़रूरत है 30,000 रुपए की तो मैं 30,000 ही लूँ, मुझे ज़रूरत है 80,000 की तो 80,000 ही लूँ। ऐसा नहीं है, उनको अगर हम जितना डिमांड दें, उनकी डिमांड आएगी देंगे तो वो ले लेंगे। तो हम लोग 2 चीज़ें करते हैं अपने मॉडल में। पहला तो हमारी अपनी ब्रांच सेटअप जो होता है, हम ब्रांच अपनी ओपन करते हैं, तो उसके हम 30 किलोमीटर रेडियस में काम करते हैं। उसके बाद हम लोग का जो तो फील्ड अगर स्टाफ आपकी होता है, ब्रांच हम नहीं है किसी भी विलेज में, तो आप लोन नहीं देंगे, उस मार्केट में नहीं जाएंगे, हाँ, करेक्ट? हाँ जी, हाँ जी। ओके, ग्रेट। हाँ, ओके, यस सर। गॉट इट, ओके। क्योंकि उसे हम हमारा एक रेडियस है कि मैक्सिमम 40 किलोमीटर एंड 30 टू 40 किलोमीटर रेडियस में हम काम करते हैं। उसके चारों तरफ जो भी हमारा एरिया कवर होगा, हम करेंगे। उसके अलावा अगर आगे का स्कोप है तो वो दूसरी ब्रांच उस एरिया में खोल देते हैं जहाँ से वो एरिया कवर हो सके। श्योर। हम ये करते हैं। तो इसमें सबसे पहला प्रोसेस आता है कि हम एरिया का सर्वे करते हैं। उस मार्केट का हम रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं कि मार्केट ब्रांच कैसा खोलने है, से पहले, मार्केट में। बिफोर इवन यू हाँ, ओपन योर ब्रांच? ब्रांच से पहले ओके, ओके। या सर, हम 2 तरह से सर्वे करते हैं। एक तो ब्रांच ओपन करने से पहले ब्रांच कहाँ ओपन करना वो सर्वे करते हैं। क्या पोटेंशियल है, वहाँ का पॉपुलेशन क्या है, वहाँ की इकोनॉमिक क्या है, लोग क्या करते हैं, और उनकी बैकग्राउंड में हम ये डिफ़ॉल्ट रेशियो क्या है, मार्केट में बिज़नेस एक्टिविटी क्या-क्या है, एग्रीकल्चर बेल्ट है तो एग्रीकल्चर में एनिमल हस्बेंड्री ये सब है कि नहीं, ये सब चीज़ें हम लोग देखते हैं। फ्लड वाला एरिया है कि वहाँ पर राइट्स तो नहीं होते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग एनालिसिस करते हैं। उसके बाद हम लोग फाइनली वहाँ ब्रांच ओपन करते हैं। अगर सब चीज़ अच्छा रहा तो फिर ब्रांच ओपन करेंगे। दूसरा, फिर अब जब ब्रांच ओपन कर लेते हैं तो फिर उस 30 किलो रेडियस में जितने भी विलेजेस आते हैं, जो मार्केट सेमी अर्बन, अर्बन और जो भी लोकल मार्केट्स हमारे आते हैं, हम उनका सर्वे करते हैं। उस विलेज का सर्वे करते हैं। उस सर्वे में 2-3 चीज़ें करते हैं। पहला तो पॉपुलेशन कितना है? पॉपुलेशन में फिर हम ये देखते हैं कि लिटरेसी रेट क्या है? तीसरा चीज़ देखते हैं कि उनका बिज़नेस एक्टिविटी क्या है? कितने गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, कितने प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, कितने बिज़नेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं, लोग क्या करते हैं, कमाने के लिए लोग बाहर जाते हैं कि गाँव में ही अपनी एक्टिविटी उनकी है, कितने लेबर वर्क हैं। तो ये सब छोटे-मोटे शॉप या टेलरिंग का काम या ठेले लगाने का, सब्जी का, ये सब हम लोग सर्वे में देखते हैं। फिर हम लोग सर्वे ये करने के बाद फिर उस पोटेंशियल एरिया में हमारा स्टाफ जाता है। हम उस गाँव में मीटिंग करते हैं, लोगों से मिलते हैं। उनको हम अपने बारे में समझाते हैं। उनसे अपनी कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में हम उनको डिटेल्स में समझाते हैं। फिर उसमें जो लोग एग्री होते हैं कि सर मुझे नीड है, मुझे इतनी रिक्वायरमेंट है। फिर वो अपना नीड, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग हमारे यहाँ अप्लाई के लिए अपने फॉर्म को अपने एक जगह इकट्ठे होते हैं। तो जब हमारा आप एम्प्लॉइज़ आता है। तो जब आप अपनी नीड एनालिसिस करते हैं उनके लिए, जी, तो जी, वो जी। ये नहीं सोचते कि भाई यू आर गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव देन द बैंक्स एंड तो फिर मैं आपसे लोन क्यों लूं? तो वो कैसे हाँ, काउंटर हाँ, करते हैं? ये चीज़ें आती हैं सर। हुँ, एक्चुअली लोगों को क्या कि हमारा जो रेट होता है बैंक से हम हायर रेट पे हमारे होते हैं। करेक्ट। लेकिन कस्टमर को क्या होता है कि अगर वो बैंक के पास जाते हैं, उनको मजबूरी उनके साथ ये है कि बैंक उनको फंडिंग नहीं कर पाता है। रीज़न
क्योंकि उनकी कोई बैंकिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन हिस्ट्री हिस्ट्री नहीं नहीं है। होती है। हाँ, कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं होती, उनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं होता है। उनके पास दूसरी जो चीज़ें हैं कि बैंक उनको तभी लोन देगा या उनके पास कोलेटरल सिक्योरिटी हो या उनकी बैंकिंग हिस्ट्री हो, कोई परमानेंट उनके पास उनके अकाउंट में पैसा, उनकी सैलरी या कुछ हिट करता हो, आता हो, उसके ब्याज पर देंगे या फिर राइट। उनको अपनी एग्रीकल्चर ज़मीन जो है उसको वो मॉर्गेज पे रखें, तो उस ब्याज पर फिर वो बैंक उनको फंडिंग करता है। तो जो कि वो संभव नहीं हो पाता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके पास कुछ भी नहीं होता, वो मज़दूरी पे डिपेंड है, छोटे-मोटे बिज़नेस कर रहे हो, वो भी कैश में पैसे आते हैं, बैंक उनको नहीं कर पा रहा है। तो ऐसे कंडीशन में फिर उनके पास 2 ऑप्शन होते हैं, एक तो लोकल मनी लेंडर। लोकल मनी लेंडर क्या करते हैं, उनका बहुत हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। राइट। प्लस वो बदतमीज़ी से बात करते हैं, फिर वो भी गहने गिरवी रखेंगे या ज़मीन गिरवी रख कर के तब उनको कुछ मार्जिनल कुछ गिरवी रखेंगे तभी उनको देंगे और उनका बहुत हाई रेट होता है। तो तो आपका कस्टमर को क्राइटेरिया क्या है विकास? क्योंकि आपने देखा कि क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है, पेमेंट आ रही है या नहीं आ रही है, बट यू स्टिल गो अहेड एंड प्रोवाइड दैट लोन तो हम लोग टू द सर जो कंज्यूमर। अपनी पेमेंट्स को जैसे एनपीए हमारा 0 है, अपने पेमेंट को 100% रिस्टोर करने के लिए हम लोग 2-3 चीज़ें जो क्राइटेरिया हम लोग को बना रखा है। राइट। एक तो पहला क्राइटेरिया बना रखा है कि कस्टमर का किसी अदर जगह से कोई डिफ़ॉल्ट ना हो। अगर उसने कहीं से भी लोन ले रखा है, उसका कोई डीपीटी एंड डिफ़ॉल्ट ना हो। दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि उसके ऊपर ओवर डेप्टनेस ना हो, यानी उसने कंपनियों से और भी कंपनियों से पैसा ले रखा है वो और लेवरेज ये नहीं हो। साहूकारों हाँ, से भी पैसा ले रखा है। अंडरस्टूड। तो ये हाँ जी। तो हाँ। उनको उनके ऊपर ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा वो कर्ज़ में हो, जिसकी वज़ह से फिर वो लोन लेने के बाद फिर वो रीपेमेंट करने में उनको प्रॉब्लम हो। दूसरा, हम ये देखते हैं कि उनकी कैश फ्लो क्या है। गाँव में अगर लोग 2-3 एक तो मज़दूरी करते हैं या तो फिर वो लोग अपनी खेती-बाड़ी है, उससे पैसा उनको आता है या फिर वो एनिमल हस्बेंड्री, गाँव में लोग मैक्सिमम लोग गाय-भैंस रखते हैं, जिससे दूध बेच के उनको पैसा आता है। हम लोग सोर्स ऑफ इनकम देखते हैं कि कस्टमर जो हमसे पैसा लेना चाहती है, वो उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या-क्या है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि वो पैसा किस लिए लेना चाहती है। कोई कस्टमर कहता है कि हम ये इनकम जनरेशन लोन हम देते हैं, यानी हम उनको शादी करने के लिए, घर बनवाने के लिए, दूसरों को कर्जा चुकाने के लिए, ऐसे एक्टिविटी के लिए हम लोन नहीं देते हैं। हम्म। हम उनको लोन देते हैं कि जो जिस पैसे को अपना वो लगा करके अपने बिज़नेस को बढ़ा सके। इंटरेस्टिंग। किसी ऐसी एक्टिविटी में वो पैसा लगाए जिससे इसकी सोर्स ऑफ इनकम बढ़े, उनकी इनकम डेली का इनकम हो। ऐसी एक्टिविटी के लिए हम लोग लोन देते हैं। सो सो एक अगर वो मज़दूरी जी, जी। suppose I come to you and I ask you that I need loan, say 50,000 rupees to fund my या child's education. उसके लिए आप नहीं देंगे बिकॉज ये बिजनेस नहीं है। बिजनेस में जब तक जी, मैं जी, जी। लगाने के लिए तैयार नहीं हूँ आप लोन नहीं एक्सटेंड करते हैं, करेक्ट? हाँ, हाँ। यस सर। अंडरस्टूड। इसमें इसमें सर आता है कैटेगरी अलग-अलग है। जैसे हम अगर हम एजुकेशन लोन के लिए बात करते हैं, तो एजुकेशन लोन बैंक दे देता है। लेकिन एजुकेशन लोन के लिए बड़े अमाउंट को लोन चाहिए। वो 30-40 हज़ार अच्छे एजुकेशन के लिए 5 लाख, 10 लाख करेक्ट। बड़े अमाउंट के लोन चाहिए। उनको 40-50 हज़ार अगर हम देते भी हैं, तो फिर वो उनके लिए फ्रूटफुल नहीं होगा, वो उनके लिए इतना यूज़फुल नहीं रहेगा। राइट। तो ये चीज़ आती है। हाँ, ठीक है, ठीक है। सो तो ये चीज़ें हम जो जी, नहीं, प्लीज़, प्लीज़ कंटिन्यू। ओके, प्लीज कंटिन्यू। हाँ। या तो इसमें सर हम एक चीज़ ये देखते हैं कि उनका कैश फ्लो देखते हैं, किस एक्टिविटी के लिए वो लोन लेते हैं और वो रीपेमेंट कैसे कर पाएँगे, ये चीज़ें हम लोग इंश्योर करते हैं और उनका प्रीवियस किसी कंपनी से लोन चल रहा है तो कोई डिफ़ॉल्ट नहीं है। ये सब चीज़ें हम लोग चेक करके फिर उनको लोन देते हैं। हम्म। जिसकी वजह का ये होता है सर और दूसरा चीज़ कि ये डोर स्टेप सर्विस है। बैंक क्या है कि हमें बैंक के पास जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ हम लोग डोर स्टेप सर्विस देते हैं। उनके घर पर हम जा कर के उनको बेकायदे उनको ट्रेनिंग दे करके उनको हम पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं। अगर कोई उनकी बिज़नेस एक्टिविटी कुछ कर रहे हैं, उसमें हमें गाइड करना होता है तो हम वहाँ पे हमारा लोकल स्टाफ जो है वो उनको गाइड भी करता है प्रॉपर उनको उस पर हम लोग इलिटरेट करते हैं। हम्म। उनको बैंकिंग से रिलेटेड कोई भी एजुकेशन चाहिए उसको हम लोग इसको बिल्कुल ट्रीट करते हैं। गवर्नमेंट की कोई फैसिलिटीज होती है उनके बारे में हमको बताते हैं। इसके लोन के अलावा हम उनकी हेल्थ को लेकर के अवेयरनेस देते हैं उनको। हेल्थ से रिलेटेड हम ई क्लिनिक फैसिलिटीज उनको देते हैं जहाँ पे वो अपना डेली अपने हमारी ब्रांचों पर आकर के वो अपना चेकअप करा सकते हैं। एमबीबीएस डॉक्टर से टेलीकॉलिंग कॉल करके उनसे प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। जेन्युइन दवा जेनरिक दवा जो होता है वो नॉर्मल दवा ब्रांच पे हमें अगर ज़रूरत है तो जैसे सर्दी खांसी बुखार का नॉर्मल दवा वो ब्रांच पे हमारे जाके ले सकते हैं। हम्म। और उसके अलावा डेली वेजेस लॉसेस जो होती हैं उनकी वो कवर होती है।
प्लस उनको अगर एक्सीडेंटल डेथ होता है वो कवर होता है, एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइज होते हैं वो कवर होता है। तो ये लोन के अलावा उनके और भी चीजों के लिए हम लोग पूरी अवेयरनेस और ये चीजें प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि एक कस्टमर को सिर्फ हम लोन नहीं, उनके वेरी अलावा भी इंटरेस्टिंग। उनकी और भी जरूरतें सो जो या वो सो हम उनको आप एक प्रोवाइड इको करते हैं। या आप एक इकोसिस्टम ऑफर करते हैं उनको. इट्स नॉट जस्ट अबाउट लोन बट also about their या health सर, and या other education pieces, जी which जी will help them to kind of stay with you. Interesting, very, very interesting. So the other thing, और because इसमें सर I एक was चीज when I was doing the research, या I found that one of the most impressive things about your company is your digital journey. तो थोड़ा सा उसके बारे में बताइए कि how did you really start your digital journey and with mobile banking now coming to play, how have you guys gone about doing this? मेरे को मालूम है कि आप completely digital हैं and आपकी सारी transaction यस digitized हैं, तो उसके बारे में जरा बताइए. जी सर। हाँ, इसके बारे में अगर मैं अपनी हमने 2000 कंपनी इनकॉर्पोरेट हमारे 2017 को कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। जनवरी 2019 को कंपनी को आरबीआई का लाइसेंस मिला एंड हम लोगों ने अपना आरबीआई का लाइसेंस मिलने के बाद हमने उन्हें 6 मंथ के लिए लगभग 1 ईयर ही हम लोगों ने दिल्ली में, केवल प्रॉपर दिल्ली में हम लोग ने बिजनेस लोन स्टार्ट किया। देन 2020 जुलाई 20 से हमने मेनली अपने बिजनेस को हम लोगों ने ड्राइव शुरू किया। तो हमने अपनी फर्स्ट ब्रांच हमने अमला, मध्य प्रदेश के अमला में स्टार्ट किया और हमने डे वन से ये डिसाइड कर लिया था कि हम लोग को कैशलेस होना है। इसके पीछे रीजन क्या था कि हमने 2019 में जब लॉकडाउन कोरोना काल आया, 2019-20 का हमने जो कोरोना काल में लॉकडाउन फेज देखा, उसमें हमने देखा कि कस्टमर रिपे करना चाहते हैं, लेकिन हम उनके घर पे पहुंच नहीं पा रहे हैं। उनके पास कोई मैकेनिज्म नहीं है कि वो कैसे अपने इंस्टॉलमेंट को पे करे। तो वो चीजें मैंने फेस किया कि फिर हम लोग देखा कि कस्टमर को हमने फोन करते थे तो कस्टमर गूगल पे, फोन पे से भी पेमेंट कर दिया करते थे, या लोकल में कहीं जो कियोस्क सेंटर होता था कस्टमर वहां जाकर पे कर दिया करते थे। तो हमने वहां से ये देखा कि अगर आगे फ्यूचर में लॉकडाउन आगे बढ़ता है, कोरोना काल का कोई अभी क्लियर मार्केट में समझ नहीं आ रहा था कि अभी कोरोना कैसा क्या रहेगा, क्या आगे का मार्केट कैसा रिएक्ट करता है। लॉकडाउन लगते तो हम कस्टमर के घर पे कैसे जा पाएंगे, उनसे कलेक्शन कैसे कर पाएंगे। और दूसरा था कि गवर्नमेंट भी डिजिटल इंडिया पर फोकस कर रहा, डिजिटलाइजेशन पर फोकस कर रहा था। उसके तहत उन्होंने जनधन के अंदर सभी के अकाउंट ओपन कर लिए थे, जो हमारे लिए बहुत फ्रूटफुल हुए, जिससे कि हमें कस्टमर को अकाउंट ओपन करने के लिए ज्यादा वो नहीं करना पड़ता था। सभी के ऑलमोस्ट लगभग सबके अकाउंट खुले मिल जाते थे। केवल हमें उन्हें मोटिवेट करना था कि वो अपने अकाउंट में पैसा कैसे जमा करें, अपने अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन कैसे करें, ये चीजें उनको हमें रिलेटेड करना था। ये हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था, क्योंकि आज की डेट में सभी कंपनियां मैक्सिमम लोग 70 to 80% लोग कैश में कलेक्शन करते हैं। और जो उस इंडस्ट्री से है, एम्प्लॉय भी है, उनकी मेंटलिटी भी यही थी, कस्टमर कैश में पैसा देते हैं क्योंकि मजदूरी करते हैं, मजदूरी भी कैश में मिलता है, तो वो कैशलेस पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज जब हमने पहला ब्रांच अमला में ओपन किया और उस जगह पर हमने लोन के लिए हमने जब प्रोसेस शुरू किया, और उस प्रोसेस में मैं अमला के एक गांव में गया था और मैंने उस ग्रुप जो कस्टमर थे उनको मैंने पूरी तरह से ट्रेन करके, मैंने उनको मोटिवेट करके पूरा समझा करके हमने उन्हें लोन दिया। लेकिन जब इंस्टॉलमेंट देने की बारी आई तो कस्टमर कैश में पैसा लेके बैठे थे। तो Interesting. मुझे फिर वहां सरप्राइज हुआ कि मैंने इतना उनको समझाने के बाद ये हुआ। तो फिर मैंने उस दिन क्या किया कि मैंने कस्टमर को कैश लेने से मना किया। उनको फिर मैंने समझाया कि बहन जी, आप लोग कैश में पैसा देते हो तो क्या आप लोग जिंदगी भर यही 30,000 40,000, उनको मैंने पूरी कहानी बताया कि आप कितने सालों से लोन लेते आ रहे हैं। तो किसी ने कहा सर हम 10 साल हो गया मुझे लोन लेते, किसी ने कहा सर मुझे अभी 4 साल 5 साल हुए हैं, किसी ने कहा सर हम लगभग हम 2008 से पैसा लेते आ रहे हैं। तो लोगों ने अपना 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 व्यू दिया। तो मैंने कहा कि और अभी तक आप कितना पैसा आपको मिल पाता है। तो सर हमें मैक्सिमम अभी तक हमने इतने सालों से लोन लेते आए, मुझे 50,000 अभी मैक्सिमम अमाउंट जो 50,000 मिला है। तो फिर मैंने कहा कि बहन ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ता है। तो उन्होंने कहा कि सर हाँ मुझे जरूरत पड़ती है, लेकिन मजबूरी क्या है कि मुझे इससे बड़ा लोन नहीं मिल पाता है। तो मैंने कहा कि बहन यही रीजन है, क्योंकि बड़े लोन के लिए आपको डॉक्यूमेंट प्रोसेस में बैंक स्टेटमेंट चाहिए होता है, और जो कि आप कैश में पैसा देते हो तो बैंक आप ट्रांजेक्शन आपका उसमें शो नहीं करेगा। जब ट्रांजेक्शन शो नहीं करेगा तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री नहीं दिख पाएगी कि आप उस रिपे कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। अगर बड़े लोन के लिए चाहिए तो आपको अपने अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन करने होंगे। अगर आपको हमेशा के लिए 40-50 हजार की जरूरत पड़ती है, आपका बिजनेस ये है, आपको बड़े पैसे टिकट साइज के लोन चाहिए, लेकिन आप नहीं मिल पा रहा है इसी वजह से,
अगर आप बैंकिंग ट्रांजेक्शन के थ्रू आप पेमेंट करते हो, अपने अकाउंट के थ्रू आप ट्रांजेक्शन करते हो, तो आपकी बैंकिंग हिस्ट्री बनेगी, आपका स्टेटमेंट जनरेट होगा, करेक्ट, जो आपको हेल्पफुल होगा, जो कि बैंक से और अदर जगह से बड़े टिकट साइज की लोन लेने के लिए। फिर एब्सोल्युटली। उनको दूसरा हमें बेनिफिट बताया कि आप कैश में मुझे पैसा दे रहे हो, उसका प्रूफ आपको क्या मिलना है? कोई हम्म, प्रूफ नहीं है। कैश में पैसा ले लिए, स्टाफ अपने जेब में पैसा रख लिया, आपको कंपनी में जमा नहीं किया, या स्टाफ का स्नैचिंग हो गया, तो उसमें लॉसेस आपको होंगे, क्योंकि आपको कोई प्रूफ नहीं मिला। हम्म, दूसरा नुकसान आपका ये हो रहा है। तीसरा, अगर आप अपने अकाउंट में सेविंग रखते हो, पैसा आप घर पे रखते हो, चोरी हो गया, कुछ भी हो गया, वो आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन अगर आप अकाउंट में पैसा रखते हो, तो बैंक हर क्वार्टरली क्लोजिंग पर आपको इंटरेस्ट देती है, जो कि आपका अकाउंट जो बैलेंस है उसके हिसाब से आपको नॉर्मल इंटरेस्ट मिल जाता है, जो आपका एक नाइस। बेनिफिट होगा। जब उनको मैंने समझाया, मोटिवेट किया, और फिर वही कस्टमर हमें फिर कैशलेस पेमेंट की। और सो वो दिन है, आज का दिन है सर, हम 100% हमारा कैशलेस कलेक्शन है। हमारे पास 1,25,000 कस्टमर बेस हम है, और हमारा 100% कैशलेस कलेक्शन होता है। वाओ, वेरी इम्प्रेसिव। सो ये जो रीपेमेंट होती है, इज इट थ्रू यूपीआई, या वो कैसे करते हैं, या इसमें सर डिजिटल हमने, बैंकिंग से करते हैं? हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज, जी जी, इसमें सबसे बड़ा चैलेंज था कि कस्टमर, हमने पहले जो मैं प्रीवियस जहाँ भी मैंने मेरा एक्सपीरियंस रहा, वो अपने अंगूठा के थ्रू उनको पे रीपे करने के लिए, जहां पर उनको प्रॉब्लम, जो मैंने देखा था कि जो प्रॉब्लम कस्टमर फेस करते थे, गांव कस्टमर होते हैं, उनके कटे फटे हाथ होते हैं, अंगूठे में निशान कटा फटा रहता है, जिसकी वजह से वो ट्रैक नहीं कर पाता है, और वो रिपेमेंट कैंसिल हो जाता है, नहीं हो पाता है। राइट। दूसरा, नेटवर्क इश्यूज होता है, जो लोकल वहाँ उतने नेटवर्क प्रॉब्लम रहते हैं, जहाँ से उनका रिपेमेंट नहीं हो पाता है, वो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल नहीं हो पाते। तीसरा चीजें क्या था कि के लिए एक ही ऑप्शन होते थे, जिसकी वजह से कस्टमर रिपे नहीं कर पाते थे। तो हमने इस चीज के लिए हमने जो रिसर्च किया, हमने देखा कस्टमर करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास अलग अलग ऑप्शन होने चाहिए, जिसकी वजह से कस्टमर रीपे कर सके। तो पहला हमने एक ऑप्शन बनाया कि हमने यूपी अपने कस्टमर के पास एटीएम कार्ड होते हैं, रुपे कार्ड होता है, जिसमें कोई ट्रांजेक्शन चार्जेस नहीं लगते हैं। करेक्ट। तो कस्टमर रुपे कार्ड से अगर पे करना चाहे तो कैसे कर सकता है, उसके लिए हम लोगों ने एक डिवाइस दिया। एसबीआई बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के साथ टाई अप करके हम लोगों ने एक स्वैप मशीन उनको दिया, ब्रांचों पे अपने स्टाफ को, हर स्टाफ को हमने एक एक स्वैप मशीन दिया। जब कलेक्शन के लिए वो जाते थे उनके कस्टमर के घर पे, तो स्वैप मशीन के थ्रू कस्टमर अपना कार्ड स्वैप करके पेमेंट कर सकते थे। हाँ, दूसरा, हमने ऑप्शन इंटरेस्टिंग। दिया कि यूपीआई ऑप्शन दिया। यूपीआई के थ्रू हमने अपने सॉफ्टवेयर में हमने इनबिल्ड कराया कि वो क्यूआर कोड जनरेट होता है, उसी समय कस्टमर अपने अपने क्यूआर कोड से वो रिपे कर सकते हैं, स्कैन करके। दूसरा, हमने ऑप्शन दे दिया कि गूगल पे या फोन पे या क्यूआर कोड स्कैन करके पे कर सके, ये दूसरा ऑप्शन हमने दिया। उसके बाद थर्ड ऑप्शन था कि बाई चांस बहुत से केसेस में ऐसे होता है कि कस्टमर को अपने अकाउंट में पैसा नहीं रख पाई है, उनके अकाउंट में पैसा नहीं है, वो कैसे है उनके पास, उस कंडीशन में वो कैसे पे कर सकते हैं। तो आज की डेट में, जो अभी के समय में, इस में आप देखेंगे कि हर गांव में एक कियोस्क सेंटर होता है। एसबीआई का कियोस्क सेंटर है, या फिनो बैंक का है, या किसी छोटे बड़े कोई भी कंपनी बैंक के कियोस्क सेंटर होते हैं, जहां पर वो जाकर के कस्टमर डिपॉजिट कर सकते हैं। तो थर्ड ऑप्शन जो दिया हमने ये। और आज की डेट में अगर हम इसको हम डिवाइड करें अपने कलेक्शन को लेकर के, तो हमारा 100 में से लगभग हम 65% कलेक्शन हमारा क्यूआर कोड के थ्रू होता है। लगभग हमारा लगभग लगभग 25% हमारा जो कलेक्शन होता है, वो होता है अपना स्वैप मशीन के थ्रू। और जो लगभग 8 से 9% कलेक्शन जो हमारा होता है, वो यूपीआई के थ्रू हो जाता है। और मुश्किल से 1% जो कलेक्शन होते हैं, रेयर केस में, अगर कस्टमर हो जाके कियोस्क सेंटर पे जाके डिपॉजिट करके करते हैं। तो हमने वेरियस उनको ऑप्शन दिया, जिसकी वजह से कस्टमर इजीली वो पे कर सके। और अगर यही सभी कंपनियां अगर स्टार्ट कर देना, तो 100% कस्टमर इजीली सबको पेमेंट इजीली अपना अकाउंट के थ्रू करे। और आज के डेट में मैं देख रहा हूँ कि कुछ कंपनियां जो इसको इम्प्लीमेंट कर रही हैं, नए ब्रांचों को अपने इम्प्लीमेंट कर रही है, और उनका वहाँ 100% कैशलेस कलेक्शन हो रहा है। लेकिन अगर राइट। पुरानी जगह जगह पर इम्प्लीमेंट करते हैं, तो पहला बैरिकेड्स हमारे एम्प्लॉई हो जाते हैं, वो कहते हैं सर नहीं कैश में देते हैं, और कस्टमर हमेशा कैश में उस ब्रांच में देते आई हुए, वो कैसे पे करती है, उसको हम समझाने पर वो मानती नहीं है। वो कैश में दिए तो पहले कहीं वो बैरिकेड्स बन जाता है, तो Right. So, because talking about trends and advancements, do you foresee in this domain of rural finance and financial inclusion how these changes could shape the future of rural economies? मतलब ये जितने changes आने वाले हैं अगले 10
5 सालों में, उससे आपको लगता है कि भाई दिस इज़ गोना बी चेंजिंग द रूरल इकोनॉमी, और अगर येस तो इन व्हाट वे? ये- हाँ सर, इसमें अगर मैं इसको दो तरह से अगर डिफाइन करूं, एक तो रूरल फाइनेंस और एक फाइनेंशियल इंक्लूजन को लेकर। करेक्ट। तो आप अगर देखें, रूरल फाइनेंस है, ये की पॉइंट है जो रूरल इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। अब रूरल एरिया में लोगों को, गांव में क्या होता है कि लोग, मैक्सिमम लोग एग्रीकल्चर बेल्ट के होते हैं, मजदूरी वर्कर होते हैं, वो छोटा मोटा कोई बिजनेस एक्टिविटी करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास वो और आज देखें कि बहुत से ऐसे एरिया जहाँ अनबैंक्ड है, वहाँ बैंक है नहीं, उनकी ब्रांचेस नहीं है, वहाँ कोई उनको जो बचा हुआ उनको फंड के लिए रिक्वायरमेंट होता तो वो प्रोवाइड नहीं मिल पाता, उनको फंड नहीं मिल पाते। तो रूरल इकोनॉमिक के डेवलपमेंट के लिए रूरल फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंस है। और आज की डेट में अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात करें, तो ये बहुत से एरिया, अगर हम पूरे इंडिया की अगर हम बात करें, तो 1/4 ऐसी पॉपुलेशन जो बिल्कुल इलिटरेट है, जहाँ पर इनको भी फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत रिक्वायरमेंट है, और जिनकी पॉवर्टी लेवल बहुत डाउन है, यानी इनकी पॉवर्टी लेवल भी 1/4 पीपल ऐसे हैं जो पॉवर्टी लेवल बिलो है, इलिटरेट है। तो वहां पर सारे में गवर्नमेंट बहुत सी स्कीम ऐसे लेके आ रही है, जैसे डिजिटल इंडिया में अभी मोबाइल बैंकिंग शुरू किया, कि वैसी नॉर्म में रिलैक्सेशन दी हुई है। पहले क्या था कि केवाईसी के लिए आधार कार्ड अब एक ऐसा हो गया कि जो उस बिहाफ पर उनको सभी डॉक्यूमेंट फुलफिल हो जा रहे हैं। नहीं तो पहले राशन कार्ड लेके आओ तो बहुत से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती थी। तो गवर्नमेंट जो अभी दो तीन चीजें जो अच्छा है, एक तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं, एनबीएफसी कंपनियां हैं, जो एनजीओ हैं, ये लोग ग्राउंड लेवल पर जो अनटच्ड फैमिली है, जहाँ पर अभी कोई पहुंच नहीं पाया है, वहां पर ये लोग जाके ग्राउंड लेवल पर डोर टू डोर स्टेप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, डोर टू डोर इनको फाइनेंशियल इंक्लूजन की ट्रेनिंग और उनको लिटरेट कर रहे हैं। तो आने वाले समय में अगर हम देखें कि कस्टमर भी उसी हिसाब से अपलिफ्टेड है, उनकी ग्रोथ भी हो रही है। आज की डेट में जो कस्टमर देखेंगे कि मैक्सिमम हम करें तो हर घर में एक स्मार्टफोन जरूर मिल जाएगा, और जिस घर में स्मार्टफोन है उस घर में कस्टमर, उनके लड़के या उनके हस्बैंड गूगल पे फोन को यूज कर रहे हैं। बशर्ते हमें थोड़े से गाइड करने की जरूरत पड़ती है, तो वो अपना वो बैंकिंग उनसे उनका और स्मूथ हो जाता है। ट्रू। और जो उनको डॉक्यूमेंट से लेकर आधार कार्ड गवर्नमेंट ने कर दिया, जो आधार कार्ड लिंक कर दिया और बैंक से इसको कर दिया, तो एक उनको डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस भी उनके लिए इजी हो गया उनके। तो आने वाले समय में अगर हम जो इस सेक्टर की बात करें, रूरल और फाइनेंशियल इंक्लूजन, तो उसी हिसाब से रूरल एरिया में ये तेजी से डेवलप हो रहा है, और लोग आगे लिटरेट हो रहे हैं, हम्म। उनकी लिटरेसी रेट बढ़ रहा है, और लोग बिल्कुल। फाइनेंशियल इंक्लूजन से ज्यादा से ज्यादा जुड़ रहे हैं, उनकी फाइनेंशियल नीड की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही है। Yeah. So, no, this is very, very interesting. And finally, Vikas, what is the future vision of Sugamya in driving financial upliftment in India on a larger scale? तो आज से मान लीजिए 10 साल के बाद आप मेरे को बताएं कि how will Sugamya look like, and how would you be able to fulfill the dreams इसमें सर of हम इसको millions of people? यस सर, हम इसमें दो तरह से सर हम बताना चाहेंगे। सुकन्या का जो विजन है, पहला तो हम गवर्नमेंट की स्कीम्स को कोलैबोरेशन के साथ हम कर रहे हैं। एक जो गवर्नमेंट अभी इतनी स्कीम चला रही है, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, फाइनेंशियल इंक्लूजन, वुमन एंटरप्रेन्योर, इन सब को हम लोग कोलैबोरेट करते हुए, इसको हमारा विजन है कि हम उन सभी अनटच फैमिली को, चाहे वो टीयर 1 हो, चाहे टीयर 3 हो, टीयर 4 हो, हर लेवल पर जा करके फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करना, उनको उनकी फाइनेंशियल नीड को प्रोवाइड करना, उनकी जो रिक्वायरमेंट है उसको फिलफिल करना, ना कि ओनली लोन, उनकी हर रिक्वायरमेंट, उनकी हेल्थ को लेकर के, उनके एजुकेशन को लेकर के, उनकी लोकल लेवल पर उनको जो बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हैं, उनको उस रेट पर उनको पैसे नहीं मिल पाते। लोकल लेवल में वो अपने बिजनेस जो भी जैसे हथकरघा में सिलाई, कोई कढ़ाई बुनाई कर रहा है, उनको उतना रेट नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए भी हम लोग ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना करके, जहाँ से उनको उनके प्रोडक्ट की ब्रांडिंग कर सके, उनको लोकल लेवल कुछ बिजनेस एक्टिविटी ऐसा करते हैं जिनको ट्रेनिंग नहीं मिल पाता है, हमें वो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सके। और हर लेवल पर डिजिटल कैशलेस हम फोकस किए हुए हैं, जिसको हमारा यूनिक रहेगा, कैशलेस पर हम उनको और रिलेटेड करें, जिससे कस्टमर अपनी सेविंग को बढ़ा सके और बैंकिंग से वो डायरेक्टली जुड़ सके। इस लेवल पर हमारा जो आगे का 10 साल का है कि हम उस लेवल पर जा करके
कस्टमर को एक अम्ब्रेला की तरह से तैयार करें कि कस्टमर उस अम्ब्रेला में कि आप नीचे आकर के अपनी हर नीड की रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके, हम उनको Excellent. फुलफिल करा सकें। Excellent. Very inspiring. Yeah. Ladies and gentlemen, as we wrap up this insightful discussion on financial inclusion, I want to leave you with a few key takeaways. First and foremost, let's remember that financial inclusion is not just about access to financial services, it's about empowering individuals and communities to lead better lives. It's about giving everyone the opportunity to save, invest, and plan for their future. Financial inclusion is a journey, not a destination. It is about breaking down barriers and ensuring that no one is left behind. Because we sincerely hope that Yes. you are able to help millions and millions of people in India and maybe overseas at some point in time in fulfilling their dreams as we move forward. Thanks for being with us. Appreciate your time. Thank you so much, sir. This time, we are introducing you to a data visualization company in our bonus pick section. It simply creates data-driven visuals to cut through the clutter and simplify our complex world. Check it out at www.visualcapitalist.com. I bet you would be surprised to see some stunning visuals of very complex data points. Enjoy the complex world with the Visual Capitalist lens.